یہ قافلہ آ رہا ہے رمی کر کے واپس، اور یہ بیسٹ ٹائم ہے رمی کرنے کا۔ اگر رمی کرنی ہو نا عصر کے بعد کی جائے، جب آپ واپس آ رہے ہوں گے نا سورج ڈھل جائے گا، سورج غروب نہیں ہوگا، سورج ڈھل جائے گا اور جو ہے گرمی بالکل کم ہو جائے گی، اور آپ سکون سے واپس اپنے خیموں کی طرف چلے جائیں گے۔ یہ بیسٹ شروع میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پیچھے آئے رش کم ملے گی، لیکن یہاں پر پیچھے بھی رش بہت ہے بھائی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، جناب جناب، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، ماشاء اللہ کیا خوبصورت منظر ہے رمی کا۔ لوگوں کو حجاج کرام کے آپ ہاتھوں کو ذرا غور کریں کس طرح سے رمی ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں رمی کے وقت۔ کس میں گرامی؟ عبید الرحمان صدیقی، کہاں سے؟ کراچی سے؟ کراچی سے۔ پکے کراچی کے لگ رہے ہیں پکے کراچی کے۔ بھائی جان ہمارے سبسکرائبر بھی ہیں، فالوور بھی ہیں، حج کرنے کے لیے آئے ہیں، دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو حج کی فرمائے اور آپ کو حج مبارک ہو، بار بار آپ کو آنے کی سعادت ملے۔ آمین یا رب۔ حجاج کرام کھانا کھا رہے ہیں اور 12 ذی الحجہ آج میرا آخری دن ہے، میں نے کہا چلیں آپ کو تھوڑا سا منظر دکھائیں خیمے کا۔ تمام حجاج کرام جا چکے ہیں، باقی یہ حاجی صاحبان ماشاءاللہ ادھر ہی ہوں گے، یہ 13 ذی الحجہ تک یہاں پر بیٹھیں گے۔ ہاں جی ایسے ہی انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے۔ چلتے ہیں باہر، آخری ہمارا تھا آج دن اس خیمے کے اندر، اور آپ کو دکھائیں گے 12 تاریخ کی رمی، پھر اس کے بعد جو ہے حج مکمل، یعنی آج تو میری طرف سے جو ہے نا حج مکمل ہوگا 12 تاریخ کو، لیکن حاجی کل 13 تک بھی بیٹھیں گے۔ یہ میں نے کہا بھائی آج آپ کو دی اینڈ کروا دیتے، مینا عرفات مزدلفہ ختم۔ بھائی جان اس طرح، السلام ورحمۃ اللہ، چوہان صاحب کیا حال ہے؟ جناب 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 ماشاء اللہ جناب، ہمارے آپ آخری ولاگ عبداللطیف چوہان۔ عبداللطیف چوہان، انہوں نے پورا مینا کی تیاری کیسے ہو رہی ہے یہ لے کر؟ ہاں جی جی جی، السلام ورحمۃ اللہ، کیا لیں ٹھیک ہے سب خیریت ہے؟ تو اسی آپ کی حج کے لیے آئے ہوئے ہیں ماشاء اللہ، چلیں اللہ آپ کا قبول فرمائے، بارک اللہ فیک، لگتا ہے آپ بھی ہمارے سبسکرائبر ہیں۔ چلو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، کیا لیں ٹھیک ہے سب خیریت؟ اللہ کے ساتھ آپ ٹھیک ہے خیریت ہے؟ ہاں ہاں لے لیں، سائڈ پہ آ جائیں۔ اللہ اکبر اکبر، لا الہ الا اللہ۔ جناب علی حجاج کرام جا رہے ہیں رمی کرنے کے لیے، رش دیکھ سکتے ہیں آپ حجاج کرام کی ماشاءاللہ لاکھوں کی تعداد میں۔ آج 11 تاریخ ہے، آج 12 تاریخ ہے، آج 12 تاریخ کی رمی ہو رہی ہے، اور 12 تاریخ کی جو ہے یہ پہلا لاسٹ ڈے ہوتا ہے۔ حج کے 2 لاسٹ ڈے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے 12 ذی الحجہ، دوسرا ہوتا ہے 13 ذی الحجہ۔ 13 ذی الحجہ کو تو حج مکمل ہی ختم ہو جاتا ہے، لیکن 12 ذی الحجہ جو ہے یہ پہلا آخری دن ہوتا ہے۔ اگر کوئی بندہ مینا کو چھوڑ کے جانا چاہتا ہے تو 12 ذی الحجہ کو جا سکتا ہے مینا کو چھوڑ کے۔ جناب علی ہمارے ساتھ ماشاءاللہ حاجی صاحب ہیں اور ہمارے سبسکرائبر بھی ہیں۔ ہاں جی ایسے ہی ہے؟ ہاں بالکل، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اللہ آپ خوش کرے، اللہ آپ کا حج قبول فرمائے، آمین آمین بار بار آنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ آمین آمین۔ حجاج کرام رمی کے لیے جمرات جا رہے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ماشاءاللہ اس طرف بھی حجاج کرام جا رہے ہیں، اور اس طرف بھی اگر آپ دیکھیں تو بڑی تعداد میں آپ کو حجاج کرام رمی کے لیے جاتے ہوئے نظر آئیں گے۔ تو ایک چیز میں نے حج سے پہلے آپ لوگوں کو دکھائی تھی کہ بھائی جان یہ پنکھے جو ہیں لگائے جا رہے ہیں، فین، تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حج کے دوران یہ کس طرح سے کام کر رہے ہیں۔ اب دن کے تقریباً 4 بج رہے ہیں، اور 4 بجے کے وقت جو ہے دھوپ بھی کافی ہے، لیکن یہ پنکھے دیکھیں ماشاءاللہ شاور بھی جن میں چل رہا ہے اور ہوا بھی دے رہے ہیں، اور حجاج کرام کو یعنی کہ کافی حد تک جو ہے گرمی کو جو ہے نا کم ہو رہی ہے ان پنکھوں کی وجہ سے۔ حجاج کرام رمی کر رہے ہیں پہلے جمرے کو، یہ ہے جمرۃ الصغریٰ۔ جیسے آپ انٹر ہوں گے تو آپ کے سامنے اس طرف لکھا ہوگا جمرۃ الصغریٰ، اسمال جمرہ جو ہے یہ ہے، تو اس کو آپ نے 7 کنکریاں مارنی ہیں حج کے دوران۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ماشاءاللہ حجاج کرام بڑے زور اور شور کے ساتھ بڑے پیارے انداز کے اندر رمی کر رہے ہیں، اور رمی کا طریقہ یہ ہے کہ ایک چھوٹے دانے کی، چنے کے برابر کے دانے کی جو ہے کنکری ہونی چاہیے، اور اللہ اکبر کہہ کر آپ جو ہے کنکری مارنا شروع کریں گے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بھائی جان حجاج کرام دیکھیں بھائی رمی کر رہے ہیں، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ان کا حج قبول و منظور فرمائے، یا رب العالمین، یا رحمان یا رحیم۔ آج میں آپ کو قریب سے دکھاتا ہوں کہ بھائی جان حجاج کرام کس طرح سے رمی کر رہے ہیں۔
बस ये बचा के। अल्लाह अकबर, माशाल्लाह ये पाकिस्तानी हाजी है। लेकिन कोशिश करनी चाहिए थोड़ा सा ना आगे चल कर आए। अगर आप इस तरफ चल कर आते हैं, अगर आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर कोई रश नहीं है, ठीक है जी, क्योंकि शुरुआती एरिया के अंदर हाजी आते हैं, वहीं से कंकरियाँ मारना शुरू कर देते हैं, तो उसमें ये डर नहीं होता है कि कंकरियाँ सर के ऊपर गिरने का भी ख़तरा होता है। जमरत सुगरा को रमी करने के बाद फिर आप किबला रुख होंगे और दुआ मांगेंगे। दुआ मांगने के बाद फिर आपने रुख करना है जमरतुल वुस्ता, दरमियाने जमरे को कंकरी मारने के लिए। तो दरमियाना जमरा यहाँ से तकरीबन 100 मीटर दूर है, ज़्यादा दूर नहीं है। ये जमरत सुगरा है और साथ में इस तरफ जो है दरमियाना जमरा, मिडल जमरा। चलेंगे, चलते हैं जमरत सुगरा की तरफ और वहाँ पर देखते हैं कि रमी किस तरह से हो रही है। तो आपने भी इसी तरह से रमी करनी है जिस तरह से आपने जमरत सुगरा को रमी की थी। और आपको दिखाने का और ये बताने का मकसद यही है कि चलो एक तरह का आप ब्लॉग भी देख रहे हैं और अल्लाह करे इंशाअल्लाह अगर आप हज के लिए आएंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आपने रमी किस तरह से करनी है। तो मैंने काफ़ी वीडियोस के अंदर दिखाया है कि बिल्कुल चने के दाने के बराबर कंकरी होनी चाहिए और बड़ी भी ना हो ज़्यादा, ताकि किसी बंदे के सर पे ना लगे। हदीस में भी यही आता है कि छोटी कंकरी होनी चाहिए। तो छोटी कंकरी से आपने रमी करनी है। हर बार कंकर फेंकने से मेरा अल्लाह अकबर कहना है। अगर आप इस तरफ देखें उधर लिखा हुआ है जमरतुल वुस्ता, मिडल जमरा। तो मिडल जमरा जनाब ये है, तो मिडल जमरा ये है। तो इसको आप रमी करेंगे। आ जाए करीब से देखते हैं कि हुज्जाज कराम किस तरह से रमी कर रहे हैं। हुज्जाज कराम मिडल दरमियाने जमरे को कंकरियाँ मार रहे हैं। सुभान अल्लाह, क्या ही रक्कत अंगेज़, क्या ये खूबसूरत मंजर है। हुज्जाज कराम बड़े ही जोश, हुज्जाज कराम बड़े जोश व खरोश के साथ रमी जमरात कर रहे हैं। और ये वो मकाम है जहाँ पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने शैतान को कंकरियाँ मारी थी। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने रहती दुनिया तक ये सुन्नत जारी कर दी कि जो शख्स जब तक शैतान को रमी जमरा नहीं करेगा, यहाँ पर कंकरियाँ नहीं मारेगा, तब तक उसका हज जो है ना मुकम्मल नहीं होगा, नाक़िस होगा। तो सुभान अल्लाह, आज भी मुसलमान यहाँ पर आते हैं, ये हज का हिस्सा है कंकरी मारना। यही वही मकाम है जहाँ पर शैतान को कंकरी मारी थी इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने। हुज्जाज कराम बड़ी तादाद के अंदर रमी जमरात कर रहे हैं। दरमियानी जमरे को कंकरियाँ हो चुकी हैं। फिर उसके बाद जो है अगर आप आगे आएंगे तो आगे आएगा बिग जमरा, जमरतुल कुबरा और जमरतुल उक़बा भी उसका नाम है। और इसी पहाड़ के दामन में आगे जाकर एक मस्जिद आती है छोटी सी, जहाँ पर बैअतुल उक़बा हुई थी, जो इस्लाम की पहली बैअत थी, जो अंसार ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ की थी। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको दावत दी थी हज के दौरान, वो लोग भी हज के लिए आए हुए थे, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको दावत दी। जनाब अली, अभी हम पहुँच चुके हैं बिग जमरा के पास। ये है जमरतुल कुबरा, बिग जमरा कहा जाता है इसे, और इसे जमरतुल उक़बा भी कहा जाता है। तो यहाँ पर भी 7 कंकरियाँ मारी जाएंगी। तो आप देख सकते हैं कि हुज्जाज कराम माशाल्लाह यहाँ पर रमी कर रहे हैं। और सबसे ज़्यादा जो है रश जो है इस जमरे के पास है, और ये आखिरी जमरा है। तमाम हुज्जाज कराम यहीं जमा हो रहे हैं और कंकरी मारने के लिए। तो आप रश का आलम देख सकते हैं कि रश किस तरह से है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, या सलाम अलैक, या सलाम अलैक। माशाल्लाह जी, बड़ी रश है भाई। पिछले 2 जमरों से ज़्यादा रश यहाँ पर है। शुरू में मैंने आपको बताया था कि पीछे आए रश कम मिलेगी, लेकिन यहाँ पर पीछे भी रश बहुत है भाई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जनाब जनाब, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। माशाअल्लाह, क्या एक खूबसूरत मंजर है रमी का। लोगों, हुज्जाज कराम के आप हाथों को ज़रा गौर करें किस तरह से रमी हो रही है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद हो रही हैं रमी के वक्त। और सुन्नत भी यही है कि अल्लाह अकबर कहकर आपने रमी करनी है। अगर आप किसी के लिए नियाबतन कंकरियाँ मार रहे हैं तो सबसे पहले आप अपनी कंकरियाँ मुकम्मल करेंगे। फिर उसके बाद जो है जिसने अगर आपको वकील बनाया है तो अपने मुवक्किल की तरफ से आपने कंकरियाँ मारनी है साथ। तो आप एक से ज़्यादा लोगों की भी वकालत कर सकते हो।
रमी रिकॉर्ड करने के बाद जो है ना हालत बहुत बिगड़ गई है। ठंडा पानी यहाँ पर देखें माशाल्लाह, आय हाय बिस्मिल्लाह। अगर बोतल हो ना पानी की बंदा उससे पिए तो ज़्यादा अच्छा है, ऐसे पीना बहुत मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। लेकिन ये पानी ऐसे फाउंटेन की तरह निकल रहा है बाहर और इसको मुंह में भर के रोक के पीना। हज कराम रमी करके वापस आ रहे हैं और ये है मस्जिद अल खैफ और हमारे हज ग्रुप का नाम भी जो है अल खैफ है माशाल्लाह बड़ा अच्छा नाम रखा है मस्जिद खैफ की निस्बत। तो माशाल्लाह रमी हज कराम ने की है और बड़ा ही ज़बरदस्त मंज़र था। अच्छा जी, एक चीज़ मैं बताना थोड़ा सा भूल गया कि आखिरी जो रमी जमरे की जो रमी की जाती है उसके बाद दुआ नहीं मांगी जाती, उसके बाद फ़ौरन आपने निकालना है। अच्छा, एक और चीज़ जो है आगे चल के मैं आपको बताता हूँ। 5 से 6 किलोमीटर के दरमियान की वाक हो चुकी है और आसाब बिल्कुल काम करना छोड़ गए हैं। अल्लाह मुस्तआन, इतना कभी मैं चला नहीं हूँ। चलते हैं 2, 3, 4 किलोमीटर की तो वाक होती है नॉर्मली, लेकिन शदीद गर्मी, फुल सूरज से बरस रहा है और उस दौरान चलना ये बड़ा टफ होता है। चले हम जमरात को कवर करके आए हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, जो लोग 12 तारीख को मीना को छोड़ना चाहते हैं, इन 12 तारीख को अपनी हज मुकम्मल करना चाहते हैं, उनके लिए ज़रूरी होता है कि वो लोग अपना जो है रमी करने के बाद मगरिब से पहले जो है ना उनको मीना छोड़ना होता है। अगर मगरिब तक वो मीना में रहेंगे तो उनके ऊपर लाजमी हो जाता है कि वो 13 तारीख भी जो है ना रमी करें। भाईजान देखते हैं माशाल्लाह सारे हाजी जा चुके हैं, कोई भी हाजी नहीं। हमारे स्कूटर वाला चार्जिंग पे हम लगा कर गए थे, तो चार्जिंग निकाल दी इन्होंने। देखें भाई चार्ज कितना हुई है। हाँ जी, स्कूटर रानी ज़बरदस्त फुल चार्ज होगी माशाल्लाह। सारे हाजी जा चुके हैं, कुछ जमरात को गए हैं और कुछ जो है अब छुट्टी करके चले गए। खलास आज आखिरी दिन था, चले अभी हम भी निकलते हैं। ये छाता ले लेते हैं, ठीक है जी। अस्सा भी चले हैं भाई बाहर, आ जाओ जी। ये खेमा भी खाली है, लगता है इसके सारे हाजी जा चुके हैं। आगे देखें भाई आगे कौन कौन से खेमे खाली हो गए। हज ख़त्म होती है भाई खलास, 12 तारीख को चले जाते हैं हाजी। ये खेमे वाले भी चले गए, इस खेमे वाले भी चले गए। तकरीबन हाजी जा चुके हैं, तकरीबन इस वाले भी जा चुके हैं भाई हाजी के। तकरीबन मैं कहता हूँ 90% हाजी जा चुके हैं। मैंने आपसे कहा था ना कि ये बस्ती है जितनी जल्दी आबाद होती है इतनी ही जल्दी खाली हो जाती है। हज मुकम्मल होते ही, अभी तो मुकम्मल नहीं, कल का दिन भी हज का है, लेकिन हाजी तकरीबन 90% मैं देख रहा हूँ, 90 बल्कि 95% में कह सकता हूँ कि हाजी जा चुके हैं। सिर्फ अगर आप देखें कोई नहीं है भाई, कोई एक दो हाजी, एक आध हाजी दिख रहा है, सारे हाजी गए। चले हम भी निकलते हैं जनाब। सामने जो गेट नज़र आ रहा है ये वाले खेमे हमारे हैं, बल्कि थे। माशाल्लाह जनाब, ये आखिरी मंज़र देख लें आप, आखिरी व्यू मैदान मीना का। सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह, क्या ही बात है जी, क्या ही बात है। चले जी, बसें भर भर के जा रही हैं वापस हज कराम की, हम भी चलते हैं। हज का जो ना ये आखिरी हमारा व्लॉग था, एंड करते हैं, फिर मुलाकात करते हैं कि नई वीडियो के अंदर। तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।